تحریک لبیک پر پابندی کے لیے وزارت داخلہ کی سمری تیار، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کابینہ سے اگلے 24 گھنٹوں میں سرکولر سمری کے ذریعے منظوری لی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں تحریک لبیک ایسا مسودہ چاہتی تھی جس سے یورپی ممالک کے سارے لوگ واپس چلے جائیں۔ ہم نے نرم الفاظ میں قرارداد تیار کی تو مسترد کر دیا۔ ناموس رسالت پر شیخ رشید کی جان بھی قربان ہے۔ مذہبی جماعت کے سوشل میڈیا پر سرگرم افراد سرنڈر کر دیں۔ آپ حکومت کے نہیں اپنے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں تمام راستے کھل جانے کی نوید بھی سنائی۔ جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، اہلکاروں پر تشدد، انتشار اور انارکی پھیلانا کسی صورت جائز نہیں۔ ملک کے جید علماء کرام ٹی ایل پی پر پابندی کے حق میں یک زبان۔ وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا تحریک لبیک کا طرز عمل ان کے عشق رسول کے دعوے کے منافی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان نے فرنٹ پر آ کر فرانس سمیت یورپی یونین سے احتجاج کیا۔ ریاست کو ناموس رسالت، احترام صحابہ کے لیے کسی گروہ کی سند کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل صاحبزادہ محمود قاسمی نے ملک میں جاری احتجاج کو غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی قرار دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں تشدد کی لہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ راغب نعیمی کہتے ہیں سیرت پر چلنے والے مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ علامہ افتخار حسین نقوی، مفتی شاہد جاوید، ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری اور قاری سید صداقت علی کی بھی راستوں کی بندش کی مذمت، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کو غیر شرعی اور غیر آئینی قرار دیا۔ سلیکٹڈ حکومت نے ملک کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں کوئی محفوظ نہیں۔ پولیس بھی تحفظ کی محتاج نظر آتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پولیس اہلکاروں پر مشتعل ہجوم کے حملوں کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ ملوث ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ حکومت نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ تشدد، اغوا، سرکاری اور نجی املاک پر قبضے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اے این پی کا تحریک لبیک پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ایمل ولی کہتے ہیں انتہا پسند قوتوں کو مستقبل سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مذہب کو مقاصد کے استعمال کے لیے ملکی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پولیس پر تشدد، جلاؤ گھیراؤ، شہریوں پر پتھراؤ، ٹی ایل پی کارکنوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ لاہور میٹرو پر تعینات پولیس اہلکاروں پر وحشیانہ تشدد، ہیلمٹ سر پر دے مارا، چیل کووں کی طرح لپکے بلٹ پروف جیکٹ اتار لی، لہو لہان کر دیا۔ جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی پر بھی دھاوا، دروازہ توڑنے کی کوشش، کنال روڈ پر گاڑیاں نہ روکنے والوں پر پتھراؤ، متعدد گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیے۔ مشتعل مظاہرین کے تشدد سے شہید اہلکار عمران اور افضل کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ہسپتال میں زخمی افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی، پھول اور امدادی چیک پیش کیے۔ کراچی میں ٹی ایل پی کے 100 سے زائد کارکن گرفتار۔ پاکستان دشمن تنظیم کالعدم ٹی ٹی پی نے ٹی ایل پی کی حمایت میں بیان جاری کر دیا۔ مختلف شہروں میں احتجاج کرنے والوں نے میڈیا کو بھی نہ بخشا۔ لاہور میں 92 نیوز کے رپورٹر پر مشتعل مظاہرین کا حملہ، کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، کپڑے پھاڑ دیے، زبردستی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ گزشتہ روز کراچی میں مشتعل مظاہرین نے آوائی نیوز کی گاڑی پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑے۔ شرپسندوں نے فیصل آباد میں بھی آوائی نیوز کے رپورٹر پر تشدد کیا تھا۔ پولیس اور اداروں پر تشدد میں ملوث مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری کا ٹویٹ، کہا جتھوں سے ریاست نہ کبھی پہلے بلیک میل ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ پورے ملک میں تمام اہم شاہراہوں پر ٹریفک روانی سے جاری ہے۔ جمہوریت میں مختلف حلقوں کو نقطۂ نظر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن حکومت کو بزور طاقت بلیک میل کوئی نہیں کر سکتا۔
डे की कामयाबी के बाद शाहीनों की T20 सीरीज पर नजर। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। कौमी कप्तान ने 49 गेंदों पर T20 की पहली सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल। हाँ, मैं हूं नंबर 1। विराट कोहली की 5 साला हुक्मरानी खत्म। बाबर आजम वनडे के नए बादशाह बन गए। कौमी कप्तान की ICC ODI रैंकिंग में पहली पोजीशन। पाकिस्तान की जानिब से आखिरी बार ये एजाज 2003 में मोहम्मद यूसुफ के पास रहा। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के चर्चे। कोहली के बाबर को ताज पहनाने की तस्वीर सबसे ज्यादा शेयर हुई। आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर अदालत के बाहर कारकुनों ने नोट निछावर किए। मरियम औरंगजेब और कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जमानत मेरिट पर नहीं हुई। किसी की जमानत का मतलब ये नहीं कि बाइज्जत बरी हो गया या उसने चोरी नहीं की। हुकूमत अकेले माफियाज से नहीं लड़ सकती, फैसले अदालत का इख्तियार है। सर, रिजू करने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी का। आपने बिल्कुल पीपल्स पार्टी दोबारा नजरसानी करे अपने फैसलों पर। ये चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ से ठीक बात कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। PDM से मुतालिक फैसलों पर नजरसानी नहीं करेंगे। चौधरी मंजूर का ऐलान। कहते हैं, बतौर एहतजाज इस्तीफे भिजवा दिए, मंजूर हो गए तो PDM से फारिग होंगे। डील पीपल्स पार्टी से, लेकिन रिहा लीगी रहनुमा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ को जमानत मिलने पर मुबारकबाद देते हैं। चौधरी मंजूर का तंज। ये भी कहा, मरियम को गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करने का फैसला तारीख में कभी नहीं देखा। शुगर मिल्स की जेबों में 144 अरब रुपए गए। मैं क्या करता? इन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा है। वजीर आजम का जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल का जवाब। सरगोदा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर आ गई। करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता गरीब और अमीर के लिए अलग कानून हो। किसी को तहफ़्फ़ुज़ है तो बात कर सकता हूँ। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। रमजान पैकेज खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। दस 10,000 की किस्त में 10 साल में अपना घर। वजीर आजम इमरान खान ने सरगोधा में कम लागत वाले घरों की हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत हर घर पर 3 लाख की सब्सिडी देगी। शराय सूद पर भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि सूद न बढ़े और गरीबों को कम से कम किस्तें देना पड़ें। जहांगीर तरीन को फ्रॉडिया तस्लीम नहीं करते। राना सनाउल्लाह कहते हैं, चीनी की कीमत बढ़ाने में तरीन का किरदार होगा, लेकिन फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड का मुकदमा उसने दर्ज कराया जिसके लिए जहांगीर तरीन ने हर गैर सियासी और गैर कानूनी काम किया। वजीर आजम और शहजाद अकबर नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने का इदारा है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। मजीद 135 मरीज इंतकाल कर गए। ये गुज़िश्ता साल जून के बाद एक ही दिन में अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटों में मजीद 4,681 केस रिपोर्ट हुए। फाल केस 76,000 से तजावुज कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.7% रही। गुजरावाला में 88, मुल्तान में 81 और लाहौर में 79% वेंटिलेटर्स भर गए। COC का रमजानुल मुबारक में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाना खाने की इजाज़त होगी। एलामिया जारी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खेलों, मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गिलगित, KP, आज़ाद कश्मीर में सयाहत के लिए सख्त SOPs होंगी। रमजान में वैक्सीनेशन सेंटर्स 2 शिफ्टों में चलाने का फैसला। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स इफ्तार के बाद भी मुख्तलिफ औकात में खुले रहेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा में टेलीफोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपह सालार बोले, पाकिस्तान अफगान अवाम की मंशा के तहत अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर ने भी मुलाकात की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी फौज 1 मई से अफगानिस्तान से निकलना शुरू होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। तालिबान ने 24 अप्रैल से होने वाली इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया था। कहा था अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला तक किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सादिक संजरानी और सेनेट सेक्रेटेरिएट से 27 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आर्टिकल 69 से कैसे निकलेंगे, जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। फारूक एच नाइक बोले, पार्लियामेंट की कार्रवाई को नहीं, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज किया है। वफाकी बजट 2021-22 का स्ट्रैटेजी पेपर तैयार। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 2.4% रहने का फैसला। जीडीपी का हजम 46,000 अरब से 52,500 अरब रुपए मुकर्रर। महंगाई की शरह 8% रहने की तवक्को। बरामदात का हदफ 7.25 अरब डॉलर रखने का फैसला। बजट खसारा जीडीपी का 6% रहने का इम्कान। आपने IMF के कहने पे कई कवानीन बदल रहे हैं, उनके बगैर सोचे समझे कि उससे आपकी इकोनॉमी भी क्या अफेक्ट होगा। IMF के कहने पर बगैर सोचे समझे कवानीन बदले जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अवाम पर क्या असर होगा। जून तक बिजली 5 रुपए महंगी हो जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा। मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है। ये भी मालूम नहीं कि महकमा मौजूदा वजीर खजाना चला रहे हैं या कोई और। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी थी। FATF के अहदाफ पर भी अमल दरामद हो रहा था। पाकिस्तान के मजीद कर्जे मौखर करने पर गौर हो सकता है। IMF नुमाइंदा ट्रेसा दोबान का वेबनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात की भी जरूरत है। 21% पाकिस्तानी 7 दिन के दौरान माली मदद लेने पर मजबूर हुए। 12% ने सस्ती या कम तरजीही चीजें खरीदी। गैलप सर्वे ने महंगाई में पिसे आवाम के मुश्किल हालात का नक्शा खींच दिया। 11% घरानों ने अहले खाना का खाने में हिस्सा कम कर दिया। 6% अफराद ने गुजर बसर के लिए घर की अशिया तक बेच डाली। रोजगार के हामिल 17% अफराद आमदन के मजीद जराए ढूंढते रहे। रमजानुल मुबारक की आमद, फल फरोशों की मनमानियां उरूज पर। मार्केट्स में सरकारी रेट लिस्टें गायब। दुकानदार मुंह मांगे दाम बटोरने लगे। ईरानी खजूर की कई अकसाम का तो सरकारी लिस्ट में जिक्र ही नहीं, दुकानदार का दावा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,